This is the case of discussion of endocarditis. Now, Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Alihat, visiting professor of medicine, Janathan Medical University, delivering to you and try to record this lecture as well. The scenario is this is something about the fever. A 25-year-old heroin addict was presented in medical OPD with fever of 3 months duration. Intermittently with arthralgia, the fever was refractory to all types of therapy given by GPs. On examination, the temperature was 101 degree Fahrenheit, pulse was 125 per minute, blood pressure was 100/60, anemia was positive with a minimal hepatosplenomegaly, a grade 3 plus murmur, pansystolic in duration, heard at the right parasternal border, increased in the expiration. The murmur increases on expiration. Now, investigation, hemoglobin 8.4 gram, the total leukocyte count is 12,900, platelet is 1,28,000, and X-ray chest bronchitis changes are seen. ECG was showing the sinus tachycardia. Are you listening to my voice? Yes, sir. Okay, then give the questions are: what is the differential diagnosis? What are the investigation which might be helpful to read the diagnosis? What is the most probable diagnosis and justify your diagnosis? Fourth part is how you manage this case. Now, this is the question here I want to ask. This is the cardinal manifestation of heart disease. What are the cardinal manifestations of the heart disease? This is my question. What are the cardinal manifestations of the heart disease? Number 1 is breathlessness. Is the most important cardinal manifestation. Second is chest pain, typical chest pain probably. And third is palpitations. There are 3 major cardinal manifestations of the heart disease. These are 3, triad of it: breathlessness, typical chest pain, and third was the palpitations, which are actually palpitations, cardiac palpitations, precordial, you can say palpitations. These are the cardinal manifestations of the heart disease. But fever is not the cardinal manifestation of heart disease. This is only one case, and that is the endocarditis, which can cause fever. Otherwise, the fever is not the part of the heart disease is concerned. Actually, it is not usually seen in the heart disease. It is a part of it if it is, for example, it is systemic inflammatory response syndrome or multiple organ dysfunction syndrome. That is part of it, then is okay. Otherwise, it is not the cardinal manifestation. So, differential diagnosis of this case depends upon this. Correct the soft data first. Young male, fever of 3 months. Because 3 months fever means that it is paroxysm of unknown origin. And it is refractory to the therapy which was taken by the general practitioner for many months. Parenteral or oral, not responded. He is hypertensive. Tachycardia will be there, minimal hepatomegaly was seen with splenomegaly, anemia, and ECG is sinus tachycardia, because these points are important for the differential diagnosis.
The heart data is there hearing addicts. This is very important point. Temperature, documented fever it is, 101. And total leukocyte count is 12,900. And platelet was 1,28,000, normal is 150,000. The thrombocytopenia. And pansystolic murmur at the right parasternal border. Now, pansystolic murmur at the right parasternal border may occur in cases of the mitral regurgitation, in cases of the ventricular septal defect, in cases of the tricuspid regurgitation. Usually it is lower part of the right parasternal border. If it increases on inspiration, it is originating from the right part of the heart. Means that it is tricuspid area which is or pulmonary area. If it is increased on the expiration, end of the expiration, arising from the left side of the heart, it means that from the mitral area or aortic area. These are very important points to differentiate the origin of this murmur. Murmur with hearing temperature 100, 3 months duration, the pyroxy of unknown origin. Now, at one time it was my favorite subject. So I will tell you when I will probably give 1 or 2 lectures on the pyroxy of unknown origin or FUO or undifferentiated fever. Then I will tell you what is the actually conception of the PUO. You should not label the person PUO, but you should label this person as the prolonged fever. Unless he should be admitted in the hospital for the investigation, then it will be turned out to be a PUO. Still the diagnosis is not made. For me it is a simple diagnosis, but it should be confirmed diagnosis. Differential diagnosis of anything which can cause fever or the prolonged duration. Forget about the pansystolic murmur, should come under this heading. They all can cause problems to the heart anyway. Any infective disease can cause problem. Because मैंने पहले बताया SIRS, through SIRS or MODS, multiple organ dysfunction syndrome, or the part of the septicemia, the heart may be involved. For example, in coronary it may be involved as a myocarditis. It is a myocarditis, and cardiomyopathy will cause the relaxation of the papillary muscles, and there will be the functional MR, and pansystolic murmur occurs in this case. So every differential diagnosis of 3-month duration fever come under this heading, plus all conditions which can cause the third, that is the pansystolic murmur at the right parasternal border will come also in a long list then. The taper of this list, my diagnosis may be possible infections like HIV, Epstein-Barr here, coronavirus. It is what's called post-corona syndrome. Bacterial, staphylococcal, salmonella, mycobacterias, spirochetal, treponema pallidum, leptospirosis, parasite, for example, malaria. In my view, all these big chapters are there. In this case, it says everything is here. Bacteria, virus, fungus are remaining here. Fungi or fungi, they are also causing this type of problem. It is possible. Autoimmune diseases can cause fever involving heart, like SLE, rheumatoid arthritis, polyarthritis nodosa, adult still disease. Interesting disease. This is very interesting disease. Malignancy can cause secondary or primary, can cause or can involve the heart. Malignancy or tumors arising from the heart itself, vegetative myxoma, can cause MR
can cause penstoric murmur, can cause fever. Secondly, metastasis to the pericardium and then inside the myocardium penetrating into the heart. Very near malignancy, which is very close to it, like mesothelioma or bronchogenic carcinomas, can penetrate into the pericardium, penetrating the myocardium and the endocardium also. वो आगे आता है अभी देखिए. Now what is the actually thing is this is infective endocarditis. Now this terminology is now broad. It is endocarditis. That's all. Because endocarditis may be of many types. It may be infective, it may be non-infective. If you are only dealing with infective type of endocarditis, then a microbial agent should be justified. Otherwise not. So causative organism, although microbial infection are the commonest cause of endocarditis, but not all endocarditis are infective. Autoimmune diseases can cause, and the myeloproliferative and lymphoproliferative disorders and malignancies, secondaries, etc. can cause the endocarditis. So endocarditis is the word which you are using. If you are limited to this infective only, then it will become a problem. So vegetative endocarditis is probably a more relevant term which you can use. Most of the endocarditis will end up in endovegetations. Not all. 95% or 90% of cases turn out to be the vegetations which are problematical to diagnose. Now classification of endocarditis, if you want to do the classification, according to the duration it may be acute. If it will be acute means that it comes in the days to weeks. And it occurs usually in cases of those persons who are injecting themselves or some procedure has been done in the heart and infection travel directly into the heart, or as a part of septicemia, acute. There is subacute, there is no chronic endocarditis, there is subacute endocarditis, which comes in months. So subacute endocarditis, another terminology you can choose. It's possible 3 months fever, yes. Subacute endocarditis, yes. Now recurrent endocarditis, subacute endocarditis, any duration depends on you classify, you are classifying on the duration. Now recurrent endocarditis means one endocarditis was treated, patient is managed properly, and then the second attack occurs of the same in 3 months. It is called recurrent type of the endocarditis. It usually occurs in immunocompromised persons or in the cases of those who are injected, heroin addicted persons. According to the etiological classification of endocarditis, they are manifold. All group of infections are included here: bacterial, gram-positive or gram-negative, mycoplasmas, all mycoplasmas, the rickettsia, all rickettsias, spirochetes and fungals, chlamydias, all can cause the disease until and unless proved otherwise. So it is depending upon the etiology. The most common one is Streptococcus viridans. Bacterial is concerned, it is gram-positive coccus, and it is coming in the group A, B, C and D. Actually the endocarditis with group D is more common, as a whole is seen rather than A, because we are dealing with the Streptococcus viridans, which is the most commonly seen in our part of the world, not the whole part of the world. I will say the A, B, C, D, every type of the
Landsfield classification of streptococci can cause myocarditis and endocarditis as well. ये बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है, लेकिन बाल कहने का दिस इज द कॉमनेस्ट वन. आप इसके बाद देखें कि वायरल, autoimmune, metastatic, these are again the etiological classification. Autoimmune diseases, the most common one is SLE. It's called Libman-Sachs disease or Libman-Sachs endocarditis. But it can cause by the other vasculitic syndromes or other autoimmune diseases as well, less common, although less common. Metastatic disease can cause the endocarditis, and it is called merantic endocarditis. Merantic endocarditis. I have seen 1 or 2 cases of this merantic. It is not infective, it is merantic endocarditis. According to the nature of the valves, अब इसके अंदर हेल्दी वेल्स हैं कि नेटिव, डैमेज वेल्स हैं या प्रोस्थेटिक वेल्स, ये इस पर डिपेंड करता है. नेटिव वेल्स हैं, हेल्दी वेल्स हैं, उन पर जाएगा probably the portal of NT will be oral and in penetrating through the tonsillar fossa or pharynx, leading to the bacteremia and septicemia and causing the native type of endocarditis. Native endocarditis, that is the endocarditis usually seen in healthy valves. And damaged valves are concerned, they are not native but damaged valves. Native है but damaged. Native healthy, native damaged valves. If the damaged valves are the commonest cause of the problem will be something like this. The etiological agent now becomes changed. Now here is the Staphylococcus aureus, probably the most important agent. तो इस सब को यू हैव टू एडप्ट. पहले ड्यूरेशन के लिहाज से क्लासीफाई करें, फिर एटियोलॉजी अगर यू कैन पिक तो बहुत अच्छी बात है. फिर नेचर ऑफ द वेल्व अगर आपको पता है कि डैमेज वेल्व था या कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में डैमेज होते हैं वेल्व्स, रोबोटिक हार्ट डिजीज़ में भी डैमेज होते हैं, यू नो. लेकिन और डिजीज़ में इसको तो पहले कोई था ही नहीं ना, वेल्व्स आर हेल्दी. अगेन दिस स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ दिस. अगर किसी बंदे को एक्यूट हुआ है, देखें हमारा इसको जमा करें, एक्यूट हुआ है, किसको छोड़ दीजिए. एक्यूट है वो वेल्व, आपका ख्याल है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो आप प्रूफ करेंगे बाद में, वो तो सारे बाद की बात है ना. आपका ख्याल है कि दिस इज द वन, इसको जमा करें इसमें. अब आप जमा कर रहे हैं ऐसा बंदा जो एडिक्टेड पर्सन है. एडिक्टेड पर्सन के अंदर जो है वो वेल्व्स जो होते हैं वो डैमेज नहीं होते. इसको तो कोई रोमेटिक हार्ट डिजीज नहीं है, इसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज नहीं है, कुछ भी नहीं था. नेटिव है लेकिन एक्यूट है. इन सबको जमा करना पड़ेगा तो ऑर्गेनिज्म यहाँ खुद ब खुद निकल आएगा. स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और मोस्ट प्रोबेबिलिटी स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शन है दे विल ट्रेवल थ्रू द वेन्स. तो वेन्स में जाएगा तो कहाँ आएगा? ये राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में आएगा. इन्वॉल्व क्या होगा? ट्राइकस्पिड वेल्व होगा या फिर जो है पल्मोनरी वेल्व इन्वॉल्व हो जाएगा. वहाँ पे जो है ना वो एंडोकार्डिटिस डेवलप हो जाएगा. नॉट ऑन द लेफ्ट साइड. इफ इन्वॉल्व द ट्राइकस्पिड वेल्व in a urinary edict, it should be increased by a murmur occurs which is pensystolic murmur, third या fourth. आप जितना ग्रेड का मर्मर सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग, इट इज इंक्रीजिंग ऑन इंस्पायरेशन, तो कन्फर्म बात है. और फिर यहाँ से ये होता है कि द डिटैचमेंट अकर्स स्लोली बिकॉज वेजिटेशन अकर्स ऑन दिस. It will go to the lungs, and then the septic type of the problem occurs in the lungs. That is, it will cause the inflammation of the
arterial system as well as the lung parenchyma. That it will lead to the septic embolism. Septic embolism means that it will go to the lung. It is embolism, just like any embolism. But fever and murmur can be identified. इन सबको मिलाना पड़ेगा. अब ये तो हो गया, एक नेटिव हो गया जो पहले देयर इज नो हिस्ट्री बट हिस्ट्री दे दिए कि फेरेंजाइटिस हुआ था या मैनिपुलेशन हुआ था गिंगाइवा का या डेंटल प्रोसीजर किया गया था या इस तरह की कोई हिस्ट्री दे रहा है. इसमें जो है ना और रूट ऑफ एंट्री भी हो सकती है पॉसिबल. अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो है बार बार जो आप करते हैं पीआर करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं प्रोस्टेट का, डिजिटल पेरेक्टल एग्जामिनेशन, अगर वो आप बार बार करेंगे प्रेस करेंगे तो वहाँ से ऑर्गेनिज्म वहाँ से ट्रेवल कर जाएंगे ब्लड में, और वो जो एंडोकार्डाइटिस कॉज करते हैं. वो मना करते हैं कि बार बार जो है ना वो आप ना करें. एक आदमी देखता है फिर दूसरा आदमी देखता है फिर तीसरा आदमी देखता है. पहले आपको प्रोफिलैक्टिक दे देना चाहिए थी. आदमी भी वीक है, उसकी उम्र भी 60-70 साल की है. अभी आपको पता नहीं है कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, ये भी नहीं पता. हम तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट की बात कर रहे हैं. तो आखिर में जो क्लासिफिकेशन है वो इसी पे है कि डिपेंडिंग अपॉन द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी वेदर द पर्सन इज इम्यूनो कॉम्पिटेंट और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. अब इसमें जमा कर लें आप इसको भी. 1 2 3 1 2 3 4 चीज़ें होंगी. अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वेल्थ एंड अकॉर्डिंग टू द इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून नेचर. इन सब को जमा करेंगे तो फिर ये इटियोलॉजिकल ये क्लासिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी. इसको इस तरह से देखना चाहिए. अब इसमें आप देखेंगे आसान बनाएं इसको. एक्यूट की कॉमनेस्ट कॉज जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है या स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस है या वो ऑर्गेनिज्म जो स्किन पे होते हैं. ज़्यादातर जो होता है ये आईवी ड्रग यूजर्स में होता है ज़्यादातर. या एक्सीडेंट हुआ है, किसी का डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है ना वूंड हुआ है, उसको वहाँ से ट्रेवल कर गया. सभी क्यूट जो होता है वो उम्मन नेटिव के अंदर होता है ज़्यादातर. रिकरेंट जो होता है डैमेज के अंदर होता है. और दोनों के ऑर्गेनिज्म जो है ना वो स्ट्रेप्टोकोका है ज़्यादातर, या एटिपिकल बैक्टीरिया से जो कि आगे जिक्र आएगा. बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन अगर करूँ मैं तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लूँगा. मैं नहीं चाह रहा इसमें घुसना, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि आप पढ़ लीजिएगा इसको ज़रा. इसमें एक यानी आपको जो है कल्चर नेगेटिव भी मिलेगा. कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं इसको. वो हैसिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं. तो HACEK हैसिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इम्यूनो ज़्यादा सप्रेस्ड लोग होते हैं उनमें होता है ये. चले भैया सबा को आवाज़ आ रही है मेरी? सबा आपको आवाज़ आती है? Can you listen? Anybody is listening? कोई? Yes सर, आवाज आ रही है आपकी. हाँ तो हैसिक क्या है भाई? HACEK ऑर्गेनिजम्स. हैसिक क्या चीज़ थी? सर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया. H for hemophilus. H for Haemophilus, A for Actinobacillus, C for Cardiobacterium, E for Echinella और K for Quinella. हाँ, that is the thing. Has sick Corynebacterium, Echinella and Quinella group. ठीक है ना? These are the organisms which are turn out to be gram negative organisms. बिल्कुल सही बात आपने बताई. अब इसमें जो है वो इसको शामिल करें. ये वो एक टियोलॉजी थी जिसकी मैंने बात की थी आपसे ना, टर्नोवेल से. इसमें यहाँ लिख दिया इन्होंने
Mycetomonas endocarditis, मतलब every bacteria can cause it. वैसे बेकार बात है असल में. कैंडारा अल्बिकेंस इन केसेस ऑफ द एड्स में होता है कैंडारा अल्बिकेंस एंडोकार्डाइटिस, लेकिन और भी फंगाई आर हियर. क्रिप्टोकोकस कैन कॉज एंडोकार्डाइटिस. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जो है ना सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वो ये कहते हैं हर ऑर्गेनिज्म कॉज कर सकता है. वो किसी ऑर्गेनिज्म को निगेट नहीं करते. इवन वो पास्टुला पेस्टिस को भी कहते हैं वो एंडोकार्डाइटिस कॉज कर. एवरी ऑर्गेनिज्म विच इज कॉजिंग द ईमिया, बैक्टीरिया, अगर आपको पता है क्या चीज़ होती है. फिर उसके बाद क्या कहते हैं सेप्टिसीमिया, आगे चले पाइमिया. अगर इस फेज में चलता है वो, इट विल कॉज, इट कैन इन्वॉल्व द हार्ट. दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. लेकिन अगर आपको साइन मिल जाते हैं, डेफिनेट साइन होने चाहिए इसमें तो ना. स्टेप्टोकोकस जो है वो वेरिडान से, वो मैं पहले ये सारी बातें हो गई हैं. और ये इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स जो हैं उसके अंदर स्टेप्टोकोकस और ये ऑर्गेनिज्म भी हैं जो स्किन पे होते हैं, जो कि ज़्यादातर जो होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करते. एपिडेमियोलॉजी इज लेस देन 1% इन द होल वर्ल्ड, ग्लोबल की बात हो रही है. अब ये रामटिक फीवर हिस्ट्री जिसकी है तो वो तो बहुत, यानी वर्ल्ड डैमेज हुआ हुआ है. इसका मतलब है कि कोई प्रोसीजर किया गया और बाद में ये इन्वॉल्व हो गया. हीमोडायलिसिस के अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं. मैंने कहा आपको पेरेक्टल एग्जामिनेशन प्रोस्टेट का जो लोग आप करते हैं या कैथराइजेशन बार बार करते हैं, बार बार निकालते हैं, उसमें भी हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म आ जाएगा. और अगर फर्ज करें कि वो इम्यूनो सप्रेस था तो उसको हो जाएगा एंडोकार्डाइटिस. प्रोस्थेटिक वाल में तो होने ही होने हैं. अगर आपको बचाने के लिए पहले ही आपको करना चाहिए, फिर उसकी आपको प्राइमरी प्रिवेंशन करनी चाहिए. तो प्रोस्थेटिक वाल्व तो आप जो भी लगा रहे हैं, चाहे वो लगाएं या वो लगाएं, दोनों में ये प्रॉब्लम्स हैं. मैकेनिकल वाल्व लगाएं या आप टिश्यू वाल्व लगाएं. मैकेनिकल वाल्व में ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो होते हैं म्यूरल थ्रोम्बोसिस के, और प्रोस्थेटिक वाल्व में ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो वेजिटेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं. दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसमें जो है ना डिजीज़ वही हैं जो प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन किसी ने पकड़ी हुई है. पहले मैं बता दिया था आपको, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, एओर्टिक वाल्व डिजीज़ है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ थी, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ थी, प्रोस्थेटिक वाल्व, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़ थी, और किसी में कॉज ही नहीं पता चली. इन 25 to 40 वो है जो है ऑर्गेनिज्म है जिनके नाम उन्होंने अभी लिए हैं, हेसिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. वो किसी तरह से अंदर चले गए और पेशेंट जो है इम्यूनो या सब इम्यून सिस्टम पर डिपेंड कर रहा था उसको हो जाएगा. तो ये जितना जो है ना एज ग्रुप इंक्रीज विद द एज, जाहिर है वो तो हर चीज़ की इसी तरह होना है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, डिजेनरेटिव चेंज आएगा, एओर्टिक स्क्लेरोसिस करेगा, इसी तरीके से दूसरे वेल्स को भी स्क्लेरोस करेगा. जिसकी 80 साल 90 साल हो जाए तो AS और AR उसके अंदर जो हर एक में होता है. ये 80% to 90% चांसेस होते हैं AR होने के, और 70 to 80% जो हैं वो चांसेस होते हैं एओर्टिक स्क्लेरोसिस के. तो इसलिए जो एज वाइज तो ये अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो ज़ाहिर बात है आप प्रोफिलैक्सिस दे दें उसको. हम देते हैं तो एक उसको प्रोफिलैक्टिकली हम दे दें अगर, तो वो बच जाएगा. नहीं होगा वो आगे आ जाएगी बात कि सेकेंडरी प्रिवेंशन या प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे करें. डेंटिस्ट्री का बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन वहाँ जो गंगावा या आप कर रहे हैं या रूट कनाल थेरेपी कर रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, ये जो करते हैं ना, जो रगड़ाई वगड़ाई करते हैं और ये डेंटल दूसरे काम करते हैं, उसमें ज़रूरत नहीं है, परेशानी की बात नहीं है. लेकिन अगर उन्होंने गिंगावा को अगर वो हाथ लगा दिया है तो वहाँ पे उन्हें प्रोफिलैक्टिकली जो है ना वो देनी पड़ेगी. एंटीबायोटिक पहले दे दें, 1 दिन पहले लेनी होगी और फिर 5 दिन तक उसे देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ की ज़रूरत नहीं है. कॉमन प्रोसीजर जो करते हैं आप लोग डेंटल में, तो उसमें नहीं करते इसको. जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन है, अगर आपने किया है तो उसमें आप खाली प्रोफिलैक्टिकली आपने जो 2 डोज दे दें बस वो काफ़ी है. यानी 1 ग्राम एमॉक्सिसिलिन ही काफ़ी होती है. मतलब और प्रोसीजर जो भी करेंगे तो 5 डेज की थेरेपी होगी और 1 डे बिफोर से स्टार्ट होगी. तो ये जो है ना अकॉर्डिंगली ये डिजीज़
एक ड्रग है जो इस्तेमाल होती है अमेरिका में, ये मिलती है पॉन्डिनम के नाम से, ये डेक्सट्रोमिनोरेडॉक्स के नाम से। ये वो है जो किसी ज़माने में दो काम के लिए इस्तेमाल होती थी। एक तो ये था एपेटाइट सप्रेसर था, ये वेट रिडक्शन में इस्तेमाल करते थे हम इसे। जैसे एम्फेटामीन वगैरह थी, उसकी डेरिवेटिव्स हैं। तो उसने फिर क्या किया, एम्फेटामीन का मसला खड़ा हो गया, हेलुसिनेशन होते थे, मज़ा आता था। तो उन्होंने फिर अब ये रिडॉक्स और ये निकाल ली, मगर मालूम ये चला कि ये भी जो है ना करते हैं, हेलुसिनेशंस करते हैं, लोगों को मज़ा आता है। इसको भी बैन किया उन्होंने। लेकिन ये जिन लोगों ने इस्तेमाल की थी, ये रिसर्च है पूरी, उनके अंदर चांसेस इस बात के हो गए कि वाल्व जो था डैमेज हुआ और उनके अंदर एंडोकार्डाइटिस हो गया। देखिए कि एक ड्रग और भी है, कैफीन जो है ना, वो सॉरी और कैफीन एक ड्रग और है जो एडिक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और वो जो है ना वो हार्ट को लाजमी तौर पे इन्वॉल्व करती है। और ये खारा दर में जो एरिया है वहाँ पे ही मिलती है, वो इस्तेमाल करते हैं लोग। पान में भी इस्तेमाल करते हैं। एक पान जो है 500 रुपये का होता है। तो वो जो होता है हार्ट को, मैं अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा, मैं रिकॉल इट नाम चलिए, अगर आपको आता है तो आप बता दीजिए। उसको कहते हैं सिलाई मार कर पान दो, इसको कहते हैं। सिलाई मारो और पान दे दो। इसके अंदर टाइप ऑफ लीजन है एंडोकार्डाइटिस के, और कार्डियक लीजन्स हैं जो कार्डियक के अंदर होते हैं। एम्बॉलिक लीजन्स हैं, वो टूटेंगे, फ्राइबल कार्डियक लीजन दैट ब्रेक अवे, उससे टिपिकल पिक्चर विल कम। और इम्यून फिनोमेना से जो कुछ हासिल होता है, बिकॉज ये करता है और इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है, उससे कुछ फिनोमेना वास्कुलाइटिस करता है, यानी इम्यून फिनोमेना डेवलप होता है, उससे ये पिक्चर्स बनती हैं जो आप देखने वाले हैं। कार्डियक लीजन जो यूजुअली वेल्वुलर है, मैटल वेल्व सबसे इम्पोर्टेंट वेल्व है, बट इट कैन अकर इन एनी वेल्व। इसके अंदर जो होता है, जो वेजिटेशन डेवलप होते हैं उनके अंदर सबसे पहले वास्कुलाइटिस होगा, फिर वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे, वही जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होता है वही होगा। फिर उसके बाद जो है ना वो क्या होगा कि आगे फेज में जाएगा, और सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब होता है, जो उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं अटैक करती हैं आँखें रीजन के ऊपर, वो सारी की सारी आएंगी यहाँ, क्योंकि ये इससे क्या होगा, डैमेज हो जाएगा वहाँ पे। मैं तो बचाने के लिए सिस्टम आ रहा था, तो प्लेटलेट जो आए थे वहाँ पे, वो यानी जो फ्राइबल एरिया हो गया था, उस पर प्लेटलेट चिपक गए। अब प्लेटलेट क्लॉट बताया, उसके ऊपर फिब्रिन क्लॉट बन गया, इनके दरमियान सैंडविच बन गया बैक्टीरिया। तो ये मास जो है ना, इसके अंदर सेंटर में तो बैक्टीरिया होता है, चारों तरफ जो होता है वो प्लेटलेट क्लॉट होता है, ऊपर फिब्रिन क्लॉट होता है। आप यूँ समझे, ये जो है ना इसके अंदर बैक्टीरिया होता है। अब लेकिन ऑटो इम्यून अगर डिजीज़ है, जैसे ल्यूपिस है, लिम्फेंसिक डिजीज़ हुई है किसी को, तो उसके अंदर तो बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन सारी चीज़ें वो और मिल जाएंगी। प्लेटलेट भी मिलेंगे, फिब्रिन भी मिलेंगे, उसके बाकायदा सेम एज म्यूरल थ्रोम्बस, हमास। अगर आपसे कोई पूछे ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं, एक्जैक्टली सेंटर में होते हैं। वहाँ से पिक करना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो अगर इसकी बैक्सी करेंगे तो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। इसकी बैक्सी करके इसके सेंटर में जाके उससे कल्चर करो, तो फिर आपको ये मिलेगा बैक्टीरिया, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। ये साइड ऑफ एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट है जो अभी अभी बात हो रही थी। अगर ये जो है ना ब्लड बॉर्न हो गया तो माइकोटिक एनेरिज्म ब्रेन में करेगा, स्ट्रोक कर सकता है, आई में रॉथ स्पॉट बना सकता है। अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे रेटिना के अंदर, आपको जो है ना छोटे छोटे हेमरेजेस नज़र आएंगे, स्पॉट्स। और ये जो सारे जो एम्बॉलिक फिनोमेना की वजह से हो रहे हैं ज़्यादातर जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से हार्ट के अंदर भी जो है ना इन्फेक्टेड एम्बोलस और या क्लॉट है, वो वेजिटेशन जिसे कहा था। स्किन में जो पिटैची है, जैसे रेड नोड्यूल्स हैं, ऑस्टर नोड्स हैं, पपरा है, जेनवे लीजन्स हैं।
जिन में लीजन जो होता है एक्चुअली जो होता है ऑटोइम्यून नेचर का होता है। ऑस्टोनोड्स के बारे में जो है ना वो भी ऑटोइम्यून कहा गया। ज़्यादातर कुछ लोग इसको नहीं मानते, वो कहते नहीं ये एम्बोलिज्म की वजह से हुआ है। स्प्लीन के अंदर जो है इन्फेक्शन एब्सिस है, ज़ाहिर बात है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया। किडनी के अंदर जो है इन्फेक्शन है, हेमोचूरिया है, और ये अगर आगे चला गया उससे जाएगा तो नीचे चला जाएगा, और इसी तरीके से ये लोअर लिम्स इन्वॉल्व करेगा, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो जाएगी। और अगर आप इसकी पेरिफेरल स्टिग्मेटा में आखिरी चीज़ देखें तो फिंगर नेल बेड में हेमरेजेस मिलेंगे, स्प्लिंटर हेमरेजेस। ये एम्बोलिक फिनोमेना है, ये एम्बोलिज्म की वजह से हो रहा है, या एम्बोलिज्म की वजह से हो, या डायरेक्ट इफेक्ट हो, या इम्यून मैकेनिज्म से ये चीज़ें नज़र आती हैं जिनको बताया जा रहा है। अब अलग अलग डिस्क्राइब करें इसको। एम्बोलिक की जो ऑस्टल नोट्स हैं जो वो कहते हैं अमेरिकन नो ये जो है ऑटोइम्यून है, वो कहते हैं स्मॉल पेनफुल पिटिकी इन द एक्सट्रीमिटीज, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको वो बोलते हैं ऑटोइम्यून है। वो ये कहते हैं दूसरे जो थॉट है वो ये कहते हैं नहीं ये एम्बोलिक फिनोमेना है। एनीवे ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया। जेनवे लीजन्स हैं, ये जो है नॉन टेंडर डर्मल एब्सेसेस आपको नजर आएंगे। जेनवे लीजन जो प्राइमरी डिसऑर्डर वास्कुलाइटिस है बेसिकली, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो हो जाएगा उसके अंदर, और नॉन टेंडर लगेगा एब्सेस है। एक्चुअली एब्सेस नहीं होता है, ये कोल्ड होता है। नॉन टेंडर है तो इसमें कोई वो नज़र नहीं आएगा आपको, यानी लीविस रिस्पॉन्स नज़र नहीं आएगा। ये हेमरेजेस हैं, ये एम्बोलिक फिनोमेना है, डैमेज टू द कैपिलरीज। तो ये जो है लेट अपेयरिंग है, ये नज़र आ रहा है, ये नाखून में नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है। ये जो है पेरिफेरल स्टिग्मेटा, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द पेरिफेरल स्टिग्मेटा ऑफ द एंडोकार्डाइटिस, अभी शुरू हो जाएगा। वो सारे के सारे जो ऑस्टुलर नोड्स हैं, स्पिंडल हेमरेजेस हैं, जेनवे लीजन्स हैं, क्लबिंग है, इट इज थर्ड डिग्री क्लबिंग, ये सारे के सारे जितने भी आपको हैं, या आपको परपरा रशेस वगैरह हैं, ये आपको नज़र आएंगे। ये सारे के सारे जो है ना पेरिफेरल स्टिग्मेटा। तो ये अगर कोई पूछे आपसे कि पेरिफेरल स्टिग्मेटा और लिवर डिजीज बताओ, पेरिफेरल स्टिग्मा ऑफ एसएलई बताओ, पेरिफेरल स्टिग्माटा ऑफ किडनी डिजीज बताओ, पेरिफेरल स्टिग्मेटा ऑफ एंडोकार्डाइटिस बताओ, तो ये आपको ध्यान में आनी चाहिए बात, ये जो मैंने बताई अभी आपको। ये सारे के सारे जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी। ये आर्थराइटिस भी करता है, आर्थरालजिया भी करता है। ज़ाहिर है कि एक सीवियर एमआर करेगा या एआर करेगा तो कार्डियक फेलियर में चला जाएगा पेशेंट्स। मोर्टेलिटी जो है ना ओवरऑल 40% है, वहाँ ग्लोबल की बात है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो मोर्टेलिटी है 65 to 70% है। मेरे पास जो केसेस आए हैं उनकी डेथ हो गई है। जो भी आया मैंने देखा, इत्तेफाक की बात यह है कि वो NICD को रेफ़र किया गया, इट इज़ रेफर टू द NICD। उन्होंने मैनेज कर 2-3 दिन रख के पेशेंट को कहा घर में आप मैनेज कर लीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा। पेशेंट की डेथ हो गई बाद में। हालांकि ये लेट डायग्नोसिस बनाई गई थी, मैंने यानी डायग्नोस बनाया था, वो मेरे पास ही आए थे, 3rd मंथ क्रॉस कर गया था। यंग लेडी थी वो, और दूसरा भी यंग ही था। तो डेथ रेट हमारे यहाँ ज़्यादा है बिकॉज मैनेजमेंट पुअर है, उनको आती नहीं है इसको मैनेज कैसे कर सकते। इट इज़ फीवर, पॉजिटिव ब्लड कल्चर, हार्ट में हरी बात है, ये दे आर ट्रायल्ड, ज़रूरी नहीं है कि सारे हों। It may be started as flu-like symptoms in viral diseases. It is possible. Yes. Duke's modified criteria है ये जो अब जो बनाया है ना, Duke's modified criteria के जरिए आपको ये डायग्नोस करना है। 2 मेजर क्राइटेरिया, 1 मेजर, 3 माइनर क्राइटेरिया, 5 माइनर क्राइटेरिया प्लस पैथोलॉजी है। तो अगर आपने डायरेक्ट ले लिया है तो एक भी अगर आपको पैथोलॉजी मिल जाती है, अगर आपने बायोप्सी की है तो डायरेक्ट विजन, तो फिर इनकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेजर क्राइटेरिया जो है ना वो 2 हों या 1 मेजर, 3 माइनर हो, 5 माइनर हो। रिजेक्टेड जो है ना इसमें से वो होगा कि वो ऑर्गेनिज्म है जो करते नहीं है, उनका ख्याल है कि ऑर्गेनिज्म ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो करते नहीं है, उनका ख्याल है, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि उनके अंदर कोई मरमर भी नहीं था। डेफिनेटली उनको कोई
आपको में फाइंडिंग भी नहीं मिली। पॉसिबल ये हो सकता है कि भाई एक मेजर मिला लेकिन आपको माइनर आपको ना मिल सका, 2 माइनर मिल गए या 1 माइनर मिल गया या 3 माइनर मिल गए, दरमियान में फंस गया केस, तो आपके क्लिनिकल जजमेंट पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप रिस्क क्यों लेते हैं? हम मैनेज करें पेशेंट, इसको मैनेज करना होगा, इसको ज़्यादा मैनेज करना होगा, रिजेक्टेड वाले को मैनेज नहीं करना होगा, बल्कि उसकी तलाश जारी रखें कि हुआ क्यों है, व्हाट इज द डायग्नोसिस एक्चुअली। ऑर्गेनिज्म गया है, जैसे कोरोना ऑलरेडी के मैंने आपको किससे सुना दिया था पहले, वो मानने को तैयार ही नहीं था कोई। आगा खान की बात हो रही है, वो रिजेक्टेड कैटेगरी में आ जाता है ना ये, क्योंकि अभी तक कोई प्रूव ही नहीं किया किसी ने, तो फिर कहाँ से इसको रखते हैं। तो मैंने उनको पेपर भी दिखाया, मैंने कहा देखें ये पेपर लिखे हैं, वो नहीं माना नो, हमें तो नहीं, हमें तो बताया ही नहीं गया। लैब फाइंडिंग्स कल्चर, अब ये कल्चर लेने का तरीका सुनिएगा, 3 जगह से कल्चर अब लेते थे, अब 4 जगह से कल्चर लेंगे, और कम से कम जो है ना इस कल्चर को 1 घंटे में आपको लेना है, और वक्फा आपको 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट और 15 मिनट, और साइड भी चारों अलग हो, 4 साइड से यानी आपको लेना है 15 मिनट के डिफरेंस, ये मिनिमम। लेकिन अगर आप 2 आवर के बाद लेना चाहते हैं भी कर सकते हैं, तो लेकिन 4 आपको चाहिए ब्लड कल्चर में, ब्लड कल्चर 4 भेजने और अलग अलग लैब में भेज दें तो बड़ी अच्छी बात है। तो फर्स्ट वाला जो कल्चर है और 4th जो कल्चर है वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, उसमें ये पकड़ा जाएगा ऑर्गेनिज्म आसानी से। जो 2nd और 3rd में इतना नहीं है, फर्स्ट कल्चर आपने भेजा था और लास्ट वाला, और लैब भी अलग अलग हैं जिनको आपने भेजा, ये मैंने इख्तरा पाकिस्तान के लिए बनाई है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अंदर जो है ना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बेकार बात है, इसमें खाली टिसानस की कार्डियो मिलता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन एकोकार्डियोग्राफी के अंदर डेफिनेटली आपको फाइंडिंग मिलेगी, और वही में इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है, वेजिटेशंस और प्रोलैप्स और रिगर्गिटेशन, ये इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है एकोकार्डियोग्राफी। या एब्सेसिस, वेजिटेशन के साथ एब्सेसिस, ये पॉजिटिव है, मेजर क्राइटेरिया है। तो इसमें मतलब पॉजिटिव ब्लड कल्चर, एकोकार्डियोग्राफी, न्यू वेल्वुलर रिगर्गिटेशन, 3 चीज़ें तो मेजर में आ गई, और माइनर में वो बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो मैंने आपको बताई, या तो वास्कुलाइटिस से हुई हैं या इम्यून फिनोमेना से हुई हैं, डायरेक्टली हुई हैं। जैसे प्रीडिस्पोजिंग हार्ट कंडीशन थी, पहले रोमेटिक फीवर से हार्ट डैमेज था, आईवीटी की यूजर है, वास्कुलर एम्बोलाइजेशन हुआ, उससे फिनोमेना प्रोड्यूस पिटिची, हेमरेजेस वगैरह, माइकोटिक एनेरिज्म्स, ऑर्थर नोड्स हैं, जेनवे लीजन्स हैं, और एनोरिज्म्स ऑफ डिफरेंट साइड्स हैं अदर देन माइकोटिक, रॉथ स्पॉट ऑफ द आई है, एम्बोलिक लीजन है, ये स्प्लेंडर हेमरेजेस है, ये एम्बोलिक लीजन है, आर्थराइटिस है, इसमें शामिल नहीं है, इसमें दिखाया नहीं किया है इसमें, लेकिन आर्थराइटिस वगैरह को भी इसमें शामिल किया गया है, ये मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया। या रोमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिविटी ऑफ रोमेटाइड फैक्टर भी इसमें जो है ना वो माइनर क्राइटेरिया में रखते हैं। तो यहाँ तक जो है ना मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, वेरी ब्रीफ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्मिनोलॉजी, हाउ विल यू क्लासिफाई इट, and how will you go for the diagnosis on the only modified criteria। इसके लिए आपको 2 मेजर आपको मिल जाते हैं, 1 मेजर, 3 माइनर मिल जाते हैं, या 5 माइनर मिल जाते हैं, कोई मेजर नहीं मिलता, तो आप डायग्नोसिस बना देंगे। तो इसको जो है ना हमने यहाँ तक रखना था। अब 5 मिनट वक्फा करें आप, उसके बाद फिर इसका सेकंड सेशन आपको बताते हैं। तो आप अभी 5 मिनट के बाद दोबारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी, ओके।